ایک پہلو سے وہ نبی ہوں گے اور ایک پہلو سے وہ امتی ہوں گے۔ دیکھیں انہوں نے عامر بھائی نے کل بھی یہ بات کہی تھی، آج بھی انہوں نے بات کی کہ اتنا لیں جتنا ہمیں قرآن اور حدیث دیتی ہے، یہی اتنا نہ پرابلم لیں ہے۔ ہم جس کا ہمیں ملتا ہی کچھ ملتا ہی نہیں ہے، وہ مطلب ہم اپنے پاس سے اس کو ڈال دیں۔ یہ اصطلاحات ہیں، یہ انہوں نے کلیئر کر دیا۔ تو قرآن اور حدیث سے آگے ہم نے بڑھنا کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، کیوں بڑھے بھی ہمیں؟ یہاں ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے کہ وہ امتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ جب ہمیں قرآن اور حدیث یہ بات کہتا نہیں ہے تو ہم کیوں بھائی اپنی مرضی سے کیوں یہ چیزیں کریں؟ جواد بھائی دیکھیں اچھا ایک چھوٹی سی بات نوبٹ بھائی، مجھے ایڈ کرنے دیجیے۔ میں نے کوئی اپنی طرف سے تو بات نہیں کی، ابھی عامر بھائی نے سارا ایکسپلین کیا ہے کہ وہ ایک پہلو سے امتی ہیں، اور انہوں نے وہ بتایا کہ وہ کس طریقے سے امتی ہیں، پھر انہوں نے بتایا کہ وہ ایک پہلو سے نبی ہوں گے، وہ بھی انہوں نے بتا دیا۔ تو میں نے کوئی چیز بڑھائی تو نہیں ہے؟ دیکھیں اگر تو یہ جواد صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پہلو سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی ہوں گے تو ایک پہلو سے نبی ہوں گے، کیا یہ قرآن کے اندر ہے کہ حدیث کے اندر ہے؟ یہ تو مفتی صاحب عامر نذیر بھائی سے پوچھیں نا، جنہوں نے سمجھایا سارا۔ نہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میرا وہ تو چلو عامر بھائی کا عقیدہ جو ہے وہ تو مسلمان ہے، انہوں نے تو اپنا عقیدہ بتایا نا، آپ لوگوں کا عقیدہ۔ یہ دیکھیں اسکانی بھائی، میری بات سنیں، اسکانی بھائی عامر بھائی بات کر رہے ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے سمجھایا ہے کہ حضرت عیسیٰ جب دوبارہ آئیں گے ہم تو کہہ رہے ہیں جتنا اللہ کے نبی نے کہا ہے، سنیں جواد صاحب، ہمارا یہ موقف ہے کہ جتنا اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں ایک لفظ بھی نہ اس میں بڑھاؤ، حدیث میں نہ امتی ہے اچھا چلے، نہ ہم یہ دیکھیں اپنے۔ ایک لفظ بھی نہیں بڑھاؤں گا، جو آپ نے بات کی ہے اینڈ اسی ایک لفظ بھی حدیث سے اوپر نہیں جائے گا۔ آپ نے ادھر ایکسپلین کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو وہ کس طرح امتی ہوں گے، ایک پہلو سے آپ نے ثابت کیا کہ وہ امتی ہوں گے۔ کس نے کہا ہے کس پہلو سے امتی ہوں گے؟ کس نے کہا ہے؟ آپ نے خود ہی سمجھایا سب کو، آپ کیوں جھوٹ بول رہے کنفیوز کر رہے ہیں سب ہیں؟ کو۔ میں تو اس کی بھائی صاحب، جواد صاحب، آپ لوگوں کو غلط بیانی عامر کی بھائی اتنی آپ عادت ہو صرف گئی 5 منٹ میں بدل ہے، گئے، یا نشہ وہ ہے، شاہ صاحب کے آنے سے آپ یا بدل آپ نے گئے۔ بات سنی نہیں ہے؟ وہ میری فتویٰ بات آپ نے سنیں، نکاح میری تک توڑ بات دیے تھے، آپ نے کہا تھا کہ جو ان کو نبی نہیں مانتا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ الو بیٹھا ہوا ہے صاحب سے۔ میں نے کہا جو آ کے یہاں آ کے کہتا ہے نا وہ نبی نہیں ہوں گے، اس کو کہنا جا کے تجدید نکاح کرے، اور اس کا ایمان بھی ختم ہو گیا، امام جلال الدین پھر آپ سیوطی نے کے دوسرا مطابق سمجھایا وہ کہ وہ کافر کس ہو گیا۔ طریقے سے امتی بھی ہوں گے۔ ہاں آپ نے کیا پھر دوسرا ان کو سب بھائیوں کو ادھر سمجھایا کہ وہ کس طریقے سے امتی ہوں آپ گے۔ نے بات پوری یا تو سنی نہیں ہے جواد صاحب، یا آپ چلے آپ جان بوجھ دوبارہ کر بتا غلط دیں، چلے بیانی آپ کر کو رہے ہیں۔ دوبارہ موقع دے دیں سر، دوبارہ ہاں، بتا دیں۔ بات دوبارہ میں یہ کر رہا ہوں کہ کل رات کو ہمارے درمیان یہاں پر گفتگو ہو رہی تھی، عبید صاحب نے سوال کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کا جو عہدہ ہے یا ان کی حیثیت ہے وہ کیا ہوگی۔ میں نے اپنی رائے میں یہ کہا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کہا ہے اس سے بڑھ کر ہمیں ایک لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ یہ امتی وغیرہ کی اصطلاحات استعمال ہی نہیں کرنی چاہیے، اگر کریں گے تو صرف آپ اس کو پھر ایکسپلین کریں گے کہ ان معنوں میں امتی، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی شریعت جو تا قیامت ہے، نبی علیہ السلام کی نبوت جو تا قیامت ہے، ظاہر ہے کہ ان کو اس کے اندر رہ کے زندگی گزارنی ہوگی۔ تو آپ ان معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیونکہ اس شریعت پر عمل پیرا ہوں گے، لہذا یہ چونکے چنانچے کر کے آپ کو امتی کہنا ہوگا، اس کی بجائے بہتر ہے کہ اچھا جتنے چلے اللہ کے عامر بھائی نبی یہ نے دیکھیں، الفاظ کہے ہیں۔ آپ نے جس طریقے سے سمجھایا ہے ابھی میری بات ختم ہوئی نہیں بھائی صاحب، سادے الفاظ ابھی میری میں بات ختم ایک ہوئی پہلو میں نہیں، امتی۔ ابھی میری بات ختم ہوئی نہیں جواد صاحب۔ کریں بات۔ ہاں، جب میری بات ختم ہو جائے میں آپ کو موقع دوں گا بات کرنے۔ اچھا عامر بھائی آپ کی بات کر لیں تو اس کے بعد تھوڑا سا مجھے موقع دینا ہے۔ ہاں جی، تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ ایسے الفاظ ہمیں اگر امتی وغیرہ کے الفاظ استعمال کرنے ہیں اور ہمیں کوئی مجبوری ہے کہ ہم نے یہ لفظ استعمال کرنے ہیں، پھر اس کے ساتھ وضاحت کرنا ہوگی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم یہ الفاظ استعمال ہی نہ کریں ان کے لیے کہ وہ امتی ہوں گے۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے وضاحت میں امام جلال الدین سیوطی کی یہ بات پڑھ کے سنائی ہے۔ جی جی، اور اچھا یہ میرے موقف عامر بھائی اجازت ہے؟ ایک منٹ شاہ صاحب، اجازت نہیں ہے، میں پہلے بیٹھا ہوں آپ سے، آپ ابھی ذرا میوٹ ٹھیک ہو گیا۔ نہیں، اصل میں گزارا یہ ہے کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ نے منسوخ کی ہے، یہ اسکرین بڑی کرنا ذرا، یہ بات تو مرزا قادیانی نے کی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ابن مریم جو آنے والا ہے کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ فقط امتی لوگوں میں سے ایک شخص ہوگا۔ تو یہ بات کہاں پہ لکھی ہے؟ نہ ہی قرآن میں ہے نہ ہی حدیث میں ہے۔ یہ مرزا قادیانی جو کہہ رہے ہیں کہ ابن مریم جو آنے والا ہے کوئی نبی نہیں ہوگا،
बल्कि फकत उम्मती लोगों में से एक शख्स होगा। ये कौन सी कुरान हदीस में कहीं पे लिखा है ये बताए झूठ है। जी? चलेंगे एक हवाले के ऊपर ही बस हो गई है। टाक मास्टर साहब बैठे हैं, चलें यही बता दें। टाक मास्टर साहब आप भी तो अहमदी हैं, बताएं जनाब। यार कोई बंदा बात करेगा तो मैं बात करूंगा, क्या करूं। अच्छा जी, हम क्या हैं, जानवर? हेलो, आमन नजीर भाई कहते हैं हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। उल्लू समझते हैं आप हमें? हेलो टाक मास्टर साहब, हेलो बोल ले तो सही ना। उल्लू तो नहीं, मिर्जे कादियानी ने कहा खंजीर का है, बंदर का है, सुअर का है। आप वो समझे जो मिर्जे ने कहा है हमें। कहना तो मैं यही चाहता था, पर मैं अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता। ओहो सही हो गया। अल्लाह हाफिज बाकियों को। अच्छा दूजा भी किया आज। बस हो गई, जब निकल गई जे हैं। अपना लुकमा आमिर नजीर के मुंह में डाल दो। ये तो मिर्जा कादियानी कह रहा है। वो कहता है इब्ने मरियम जो आने वाला है कोई नबी नहीं होगा, बल्कि फकत उम्मती लोगों में से एक शख्स होगा। इब्ने मरियम इब्ने मरियम इब्ने मरियम। और खुद मिर्जा कादियानी वो इब्ने मरियम, वो कहता है मैं भी इब्ने मरियम हूं, लेकिन मैं किस किस्म का इब्ने मरियम हूं वो जरा मैं आपको ये हवाला दिखाता हूं, ये सुनिएगा। वो कहता है मैं कैसा इब्ने मरियम। वो कहता है ये देखे, बस इस तौर से मैं इब्ने मरियम ठहरा। वो कैसे ठहरा? वो कहता है हुआ ये था कि मैं 2 साल तक मरियम बन गया, फिर मुझे हमल ठहर गया, 10 महीने का हमल, और जब बच्चा पैदा हुआ तो इस तौर पर मैं इब्ने मरियम ठहरा। अपने आप को वो इब्ने मरियम ठहरा रहा है, और जो इब्ने मरियम है वो कौन है उसके बारे में मिर्जा कादियानी का मौकफ है कि वो कोई नबी नहीं होगा, बल्कि फकत उम्मती लोगों में से एक शख्स होगा। अब पता ये चला कि मिर्जा कादियानी ऐसा इब्ने मरियम है कि जो नबी नहीं है, एक आम सा उम्मती है। और खुद मिर्जा कादियानी नबूवत के दावे भी कर रहे हैं, हाँ मैं नबी हूं। है ये क्या माजरा है कादियानियों? मैं नीचे बैठ के सुन रहा था, आप जो कह रहे थे ना 5 मिनट पहले आपने ये कहा, वो सारी भी सुनी है आपकी मैंने। गप्पा कट मारिया करो कादियानियों। सिर्फ यही नहीं बल्कि दूसरी जगह उसने लिखा हुआ है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले मसीह के लिए नबूवत शर्त नहीं ठहराई, शर्त बल्कि ठहराई उनको नहीं एक है। आम करार दिया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये कहाँ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नबूवत शर्त नहीं ठहराई बल्कि उनको काम उम्मती करार दिया? कहाँ लिखा हुआ? किस हदीस में लिखा हुआ? ये बताइए कादियानी। इमाम जलालुद्दीन सयूती के मुताबिक तो वो बंदा एक काफर है जो इस तरह की बात कहता है कि नबूवत उनसे नबूवत को जवाल हो जाएगा, वो आम उम्मती होंगे। तो ये जो आमिर नजीर भाई बात कर रहे थे उसका हवाला सुन ले भाई। रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 59 के ऊपर ये कहता है, आने वाले मसीह के लिए हमारे सय्यदो मौला ने नबूवत शर्त नहीं ठहराई, बल्कि सिर्फ साफ तौर पर यही लिखा है कि वो एक मुसलमान होगा बस। चलो मर जो कादियानियों, करो ना बात। अब उस वेले 73 हदीस किधर गई सी? मुस्लिम थी
जिसमें नबी अल्लाह कहा गया। अच्छा, 73 हदीस बड़ी ये कादियानियों की बनाई हुई एक पोस्ट है, ये कादियानियों की। वो देखें, ये बड़े बड़े ये इन्होंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये 4 जगह जी, 4 जगह नबीउल्लाह का है, 4 जगह नबी। वो कभी ये तुम लोगों ने ये पूरी हदीस लोगों को पढ़ के सुनाई? ये पूरी हदीस ये देखो, ये सामने इसी एक हदीस के अंदर दज्जाल की 15 अलामतें और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की 43 अलामतें, ये देखें 43 अलामतें अल्लाह के नबी ने बयान की। और किसी एक अलामत के अंदर भी मिर्जा कादियानी पूरा नहीं उतरता, अल्लाह खैर करे। वो बात तो करो ना, आके करो बात। और दज्जाल के बारे में मिर्जा कादियानी ने एक दिन बैठ के मैं बता रहा था कि तकरीबन 8 मुख्तलिफ मौक़िफ़ उसने अपनाए हैं दज्जाल के मुतल्लिक़। और एक मौक़िफ़ तो ऐसा है दज्जाल के मुतल्लिक़ जिसके अंदर खुद मिर्जा कादियानी भी शामिल हो जाता है। कहता है जितनी भी अकबालमंद अकवाम है वो सारी दज्जाल है। और एक जगह वो कहता है कि ये मुगल जो मेरी कास्ट है ना, ये इकबालमंद कौम है। तो दज्जाल की ये जो अलामतें हैं, किसी तुम्हारी बताई हुई, मिर्ज़ा कादियानी की बताई हुई अलामतों में से कोई एक अलामत इसमें पूरी उतरती हो? कभी वो ईसाइयों को कह रहा है, सारी ईसाइयत को, कभी वो पादरियों को कह रहा है, कभी जनाब किसी को कह रहा है, कभी किसी को कह रहा है दज्जाल के बारे में, बदलते मौक़िफ़। ईसा अलैहिस्सलाम की यह हदीस तुम पेश करते हो बड़ी। अव्वल तो हदीसों के मुतल्लिक़ मिर्ज़ा कादियानी ने कहा है कि महदी के मुतल्लिक़ जितनी भी हदीसें हैं वो सब ज़ईफ़ है, मखदूश है, ना काबिल कबूल है। मैं नहीं मानता उनको। तो चूंकि तुम लोगों के नज़दीक ईसा और इमाम मेहदी एक ही शख्सियत है, तो ये जहां जहां भी हज़रत ईसा का जिक्र है जिस हदीस में, तो वो इमाम मेहदी के मुतल्लिक़ है तुम्हारे नज़दीक। तो तुम्हारे नज़दीक तुम्हारे कायदे कुलिये के मुताबिक तो ये हदीस ना काबिल कबूल है, मखदूश है, ज़ईफ़ है। रद्दी की टोकरी के अंदर तुमने इसको फेंकना है, जैसा कि मिर्ज़ा कादियानी ने कहा है। और अगर बात करनी है तो आओ करो, आओ निकलो बाहर, फिर इस पूरी हदीस के ऊपर बात करती हैं, इसके एक एक लफ्ज़ के ऊपर, एक एक अलामत के ऊपर बात करती हैं। आने वाले को 4 दफा नबीउल्लाह कहा है, तो इससे मिर्जा कैसे सच्चा साबित हो गया जी? वो देखे, ये पहली अलामत ही क्या कि दज्जाल जब वो करतबबाजी के अंदर शोबतेबाजी में मसरूफ होगा तो दमिश्क के मशरक के सफेद मीनारे के पास 2 जर्द के हुल्ले पहने हुए 2 फरिश्तों के कंधों के ऊपर हाथ रखे हुए उतरेंगे। अब मिर्जा कादियानी इसकी क्या तवील करता है? वो कहता है मीनारा तो ये सवाल किसी ने कर लिया उससे कि हदीस के अंदर तो मीनारे का जिक्र है, तो तेरा तो कौन सा मीनारा है? तो कहने लगा कि चलो जहां पे मैं नमाज पढ़ता हूं ना, यहां ही एक मीनारा बना दो। उसने ऑर्डर कर दिया और बकायदा तौर पे उस मीनारे को तमीर करने का चंदा इन्होंने ऐलान किया था। चंदा इकट्ठा करते और मिर्जे की जिंदगी के अंदर वो मीनारा भी ना बना, जिसका नाम इन्होंने रखा मीनारतुल मसीह। वो मिर्जे के गालबन 10-12 साल बाद, मरने के 10-12 साल बाद वो जाके बनता है। वो 83 में मुकम्मल हुआ है। हाँ, वो ही ना कितने साल बाद जाके बना है। हाँ जी, 75 साल। देख ले, ये ले 2 जर्द हुल्ले। मिर्जा कादियानी इतनी बोंगी किस्म की इसकी तावील करता है। वो कहता है 2 जर्द चादरों से मुराद असल में मेरे 2 मर्ज हैं। एक मेरे जिस्म का ऊपर वाला मर्ज है कि मुझे पागलपनी के मराकी दौरे पड़ते हैं, मैं पागल हूं। और दूसरा यह है कि दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूतर आती है। ये मेरे 2 जर्द हुल्ले हैं। और बाबे लुध का जिक्र है जी। लुध से मुराद लुधियाना है, तो लुधियाना बिगड़ के लुध है, तो लुध है, तो लुध। दमिश्क से मुराद कादियान है। और वजह उसकी ये है कि जिस तरह दमिश्क जो था ना, वो यजीद का तख्तगाह था,
ऐसे ही कादियान में यजीदी सिर्फ लोग पैदा यजीदी हुए सिर्फ लोग पैदा हुए। हैं मुराद। लो जी, कादियान, कादियान वो हदीस के अंदर एक लफ्ज था करआ, वो करा का जिक्र था, तो करा से मिर्जा ने कहा जी वो बन गया कदआ, कदा से कदा जो है ना वो डंडे वाला कदा, फिर उस डंडे वाले कदा से 2 नुक्ते वाला कदा बना। ठीक है जी, 3 स्टेप हो गए। वो कदा असल में बिगड़ के कादियान बना, कादियान फिर आगे से बिगड़ के कादियान बना। ये तो इसकी कलाबाजियां, जंप हैं, तवीले हैं, एक बात पे वो टिकता ही नहीं है। मिर्जे कादियानी की किताबों को उठा के देख ले, वो एक इबारत लिखता है ऊपर, उसके ऊपर उसको सब्र नहीं आता, वो अपनी बात की खुद ही तशरीह एक लाइन नीचे खींचता है और हाशिया लगाता है कि मैंने ऊपर वाली जो बात की असल में उसका मतलब ये है। फिर ये क्या होता है कि उन 2 बातों का भी उसको चैन नहीं आता, एक तीसरी लाइन खींचता है और कहता है कि मेरी ऊपर वाली 2 हाशियों का मतलब ये तीसरा हाशिया है। और यकीन जाने वल्ला एक चौथा हाशिया भी वो लगाता है, वो कहता है ऊपर वाली जो 3 हाशिए मैंने लगाए थे उनका मतलब ये है, ये चौथे हाशिए के अंदर। बताइए मुझे, ऐसा पागल इंसान उसके किस चीज का यकीन करोगे और किसका इनकार करोगे? कादियानियों के पास होकर मौजू ही कोई नहीं है, वो ईसा को जिंदा साबित करो तो मुर्दा साबित करो, तो उत्ते लै जाओ तो थल्ले लै जाओ, बस ये मौजू है जी। बस हवा इधर की चले उधर की चले, ईसा को जिंदा साबित करो। चलो हम कहते हैं मिर्जे कादियानी की पहले टट्टी तो रोक लो, दिन और रात में 100 दफा टट्टी तो उतर, और इस पे कादियानी बात करेगा ही नहीं। ओ भाई वो खुद कह रहा है मेरा ये हुलिया, ये मेरा निशान है, ये मेरा मोजज़ा है। हदीस के अंदर आया है कि वो 2 हुल्ले पहने हुए आएगा, 2 जर्द चादरें, वो मेरे 2 जर्द चादरें, मेरी 2 बीमारियां। अब वो टट्टी मूतर पे बात करनी को नहीं, वो ईसा को जिंदा साबित। यार ईसा को जिंदा तो मिर्जे की टट्टी कौन रोकेगा? अच्छा मुफ्ती साहब, आसकानी साहब नो तो समझ आई है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये है मतलब टाक मास्टर जी वो कैसे बंद करे उसको कैसे बंद करे? आओ क्या पूरी कादियानियत को बंद नहीं हुई थी, एक बंदे का कम नहीं है, ऐसे ही है। मास्टर जी ऊपर आइए मास्टर जी। भाई वो जवाद साहब को बुलाएं, वो मैं पहले जरा बिजी हो गया था। जवाद साहब आए, आप आपको मौका देते हैं बात करने का, वापस आए, आपको मौका देते हैं बात करने का। अच्छा वो मुफ्ती साहब ये क्या लफ्ज देख लिया कि मनारा का जिक्र है, कहता चलो चलो बनाओ। हाँ वो ना किसी ने ये सवाल किया था कि हजरत जी वो मीनारा किधर है, तो हजरत जी का मलफूजात फरमाते हैं वो चलो यार ऐसा है, वो हो इधर एक मनारा बना दो फिर। मुफ्ती साहब 3 दफा चंदा लिया उस मीनारे वास्ते ते मनारा नहीं बनया। अगर वो मिर्जा कादियानी की जिंदगी च मनारा बन जाता, मैं कसम खा के कहना मिर्जा कादियानी ने मनारे के उत्ते चढ़ के कादियां चो 2 पीलियां चादर मंगवा के एक दी बुक्कल मारनी सी, एक लक बननी सी, सज्जे पासे की नु खिलारना सी, खब्बे लेकिन ये तो टेढ़ी है, मुंशी अब्दुल करीम साल को तो टेढ़ी। जे मिर्जा कादियानी मनारे तो छाल ना मारदा, मेरा नाम तो बदल दे। नहीं ये आसकानी साहब, ये इसके ऊपर मौलवियों ने बम मारा है, पटखटे उड़ा के रख दिए, इन्हें पूरा करके लाना। अच्छा फिर मुफ्ती साहब उस बात का क्या बनेगा जबकि मनारा उधर बनाया गया को फिर जनाब इनका कोई खलीफा जाकर दमिश्क में उसका तैयारा उतरेगा, क्या होगा उसका क्या बनेगा? आपको मजे की बात बताऊं, मजे की, आपको पता है कि ये भी सवाल इससे हुआ था कि वो 2 फरिश्तों का भी जिक्र है कि उनके कंधों के ऊपर हाथ रखे हुए वो दमिश्क के मीनारे के मशरकी मीनारे के करीब नाज़िल होंगे, तो वो आपके दायां और बायां फरिश्ता कौन सा है? तो मिर्जा जी ने कहा ओहो असल में दायां फरिश्ता मेरा जो है वो
मौलवी अब्दुल करीम है तो बायां फरिश्ता मौलवी हकीम नूरुद्दीन है तो बायां फरिश्ता मेरा मौलवी अब्दुल करीम, पता है आपको? नहीं, मुझे ये नहीं पता। हाँ, वो फरिश्ते हैं दाएं और बाएं, लेकिन उनके मुफ्ती कंधों साहब, के मैं ये ऊपर हाथ पूछ रहा रख के हूँ, उतरे हैं। हाँ? मैं ये पूछ रहा हूँ इसकी क्या तत्बीक है कि वो जो मुनारा है दमिश्क में, वहाँ मैं जाऊंगा या मेरा कोई खलीफा जाएगा, इस तरह का कोई है वो मेरे ख्याल में इक्तिबास? हाँ मामा, तो ये मैं ये हवाला दाएं और बाएं फरिश्ते वाला थोड़ा सा दे दूं तो ये वही इबारत इनकी लिखी हुई है 7 साला जुबली 1913 के अंदर है। ये हजरत मसीह मौद का दायां और बायां फरिश्ता, ये है वो। ठीक है, चलें जी आसकानी साहब। जी आमिर साहब, मेरा सवाल ये था, शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, जबकि यहाँ बना दिया गया एक मीनारा कि उनको याद है कि चलो यहाँ बना लो, मुनारा तो यहाँ बन गया, अब फिर वो कह रहे हैं कि दमिश्क में मैं उतरूंगा या मेरा कोई खलीफा या बेटा, इस तरह कोई मसला है, फिर इनमें तत्बीक कैसे करेंगे? वो हमामतुल बुशरा में उसने लिखा हुआ है कि उस हदीस का मतलब ये है कि मसीह या उसका कोई नायब वो दमिश्क का सफर करेगा, मसीह या मसीह का खलीफा, ये लिखा है उसने हमामतुल बुशरा में। लेकिन अगर हदीस के अंदर मिनारातुल बैज़ा का ये मानी है कि कोई मसीह या मसीह का जो पैरोकार है, खलीफा है, वो दमिश्क का सफर करेगा, अगर ये मतलब है तो फिर अपना मीनारा बनाने की जरूरत क्या है? कादियान ये में, सवाल है मेरा। कादियान में मीनारा बनाया है बताने के लिए कि ये वो दमिश्क है, ये वो मीनारा है। मतलब मिर्जाई तो है ना मिट्टी के मादू, इनको बताओ भी ये वो दमिश्क है, ये वो मीनारा है, ये जो लुधियाना है ये वो लुध है जहां हमने दजाल को कत्ल किया है। मतलब ये बेचारे तो ना बोलते हैं ना सोचते हैं, ना इनके दिमाग में कुछ शायद चलती है, ये तो है मिट्टी के मादू, इनको जो मर्जी कह दो, इनको बेशक आप मिट्टी के कोई सुरख चीज खिला दो, गाजरों का नाम लेके ये गाजरें ही हैं तो खा जाएंगे ये तो ऐसे। ये मिट्टी का मादू एक नया लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या हुआ? अब मिट्टी के मादू नहीं बनाते, वो जो पहले छोटे हम होते थे तो वो बनाते थे मिट्टी के छोटे छोटे बुत से बनाते थे, वो उसी से ही फिर ये मूर्तियां शूर्तियां बनती पहले। तो बहरहाल उसी तरह का मिट्टी का एक मादू है, मतलब उसमें अपनी ना अक्ल है, ना सोच है, ना ख्याल है, ना कोई इख्तलाफ की या एतराज की उसमें कोई वुसअत है कि वो ये कहे कि भाई अगर वो दमिश्क की तरफ सफर करना है मसीह ने या उसके किसी खलीफा ने, तो यहाँ का मीनारा बनाने की क्या जरूरत है? इसको क्यों दमिश्क करार दे रहे हो कादियान को? नहीं, बोलना ही नहीं। बहरहाल वो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद गया था 1924 में पहले दमिश्क, तो इन्होंने कहा कि लो जी मिर्जा कादियानी की वो बात, वो तफसीर पूरी हो गई जो उसने हदीस की शरह की है ना कि मसीह या मसीह का कोई खलीफा जाएगा, लो जी पूरी हो गई है, ठीक। फिर 1955 में जब ये गया है ना तो वो कहता है 3 दिसंबर 2008 का अल-फज़ल खबर है, उसमें उसने लिखा हुआ है कि 30 अप्रैल 1955 के दिन अहमद बराड़ डिग गई है। हेलो, नहीं है ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ नेटवर्क का आवाज आ रही है? मसला नहीं है, आ रही है नहीं उनका कोई मसला हो गया उनका नेटवर्क। बराड़ नूं मुफ्ती साहब तुसी एक बार पीछे हट के आओ दोबारा, इन्हें डिस्कनेक्ट करो तो दोबारा ज्वाइन करना। अच्छा आमिर भाई, ये जो मतलब फिर इसकी कोई तावील करते हैं ना, बिल्कुल चुप। मैं वही बताने लगा था कि ये 2008 का 3 दिसंबर का अल-फज़ल अखबार है, उसमें उसने लिखा हुआ है कि जिस दिन 30 अप्रैल 1955 के दिन बशीरुद्दीन महमूद अहमद इल्म ताबीर की रूह से 2 जर्द चादरें पहने हुए, यानी बीमार था लिहाजा इल्म ताबीर की रूह से वो 2 जर्द चादरें थी जो उसने पहनी हुई थी, दमिश्क के हवाई अड्डे पर जब बशीरुद्दीन महमूद अहमद उतरा तो जो हदीस है उसकी सदाकत पर दिन चढ़ आया, हदीस पूरी हो गई। अल्लाह के नबी की वो हदीस जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे कसम है उस जात की जिसकी कब्जा कुदरत में मेरी जान है, ईसा इब्न मरियम तो मैं नाजिल होंगे। फिर आगे दूसरी हदीस में आता है, ये हवाला दोबारा लिखाया अल-फज़ल का।
3 दिसंबर 2008 का होना चाहिए, अल फजल का। वहां 13वां निशान ये लिखा हुआ है। सफ़े का पता है, कि सफ़े 30 का अप्रैल मुफ्ती साहब अल फजल के बाहर नहीं, चलो कोई नहीं, लब लाएंगे। अच्छा ये हवाला देखें जी, रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 136 के ऊपर कहता है जिसमें ये जाहिर किया गया है कि दमिश्क के लफ्ज़ से दरअसल वो मुकाम मुराद है जिसमें ये दमिश्क वाली मशहूर खासियत पाई जाती है, और खुदाए ताला ने मसीह के उतरने की जगह जो दमिश्क को बयान किया तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि मसीह से मुराद वो असली मसीह नहीं है जिस पर अंजील नाज़िल हुई थी, बल्कि मुसलमानों में से कोई ऐसा शख्स मुराद है। जो ये पूरी इबारत है, लंबी इबारत, तो आगे जाके वो कहता है कि वो तमाम खासियात जो हैं वो कादियान के अंदर पाई जाती हैं। तो जब कादियान ही दमिश्क था तो फिर वो अपने मुंडे ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦਾ फायदा। हाँ जी, हाँ, ठीक है। मतलब इनको मिर्जाइयों को मैंने अर्ज किया है कि मिर्जाइयों को एक दफा यहाँ पूरा करके दें, एक दफा वहाँ दमिश्क में जाके हदीस को पूरा करके दें। इन्होंने इसको भी कहना है ठीक है, उसको भी कहना है ठीक है। हजरत जी आपने जो शेख साहब का पाऊँ यूं भी है और यूं भी है, इन्होंने हाँ ही करते जाने। इनकी अपनी कोई अक्ल सोच तो है ही नहीं कि ये बंदा हेरा फेरियां कर रहा है, झूठ बोल रहा है। एक दफा कहता है कि यहाँ ये हदीस पूरी हुई है, मिनारतुल मसीह हमसे 3 दफा चंदा लेके कादियान में बना रहा है, कहता है ये कादियानी दमिश्क है और यहाँ मिनारा बनाओ। एक दफा वहां जाके ये बशीरुद्दीन महमूद अहमद जहाज से उतरता तो कहता है हदीस की सदाकत पर दिन चढ़ाया, और नीचे लिखा हुआ है कि साफ दिल को कसरत एजाज की हाजत नहीं, एक नशा काफी है गर हो दिल में खौफ करदगार। मतलब जो मिर्जाई बेवकूफ बुद्धू मिले हुए हैं, इनको तो जरूरत ही नहीं है कि ये दोबारा हमें सवाल करिए, तो कहेंगे कि ये हदीस की सदाकत पर वाकई दिन चढ़ा है। मुसलमानों ने एतराज करना है और वो कर रहे हैं कि यार हमें समझाओ कोई कि एक दफा कादियान को दमिश्क करार दिया, एक दफा जहाँ दमिश्क मौजूद है वहां जाके बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने कहा कि जो 2 जर्द चादरें पहन के मैं जो हवाई जहाज से उतरे हैं तो सदाकत पे दिन चढ़ा है। कोई मतलब आगे जो बैठे हुए हैं ये क्या है? ये लाशें हैं, कोई बोलता नहीं इनमें से। नहीं, मैं बोलता हूँ, इतने झूठ बोल, मैं बोलता हूँ आसकानी भाई, यहाँ पर बैठे हैं आपके मुफ्ती साहब हैं यहाँ पर से, आप क्यों जानना चाहते हैं? आप बोल लेते हैं, चलो जी बोलो जी बोलो। नहीं, मैं तो आसकानी भाई से कह रहा था ये जाने की बातें कर रहे हैं, यहाँ पर इनके मुफ्ती आजम मौजूद है, इंजॉय करें, इनसे सवालात करें, इनसे पूछें, अपना इल्म बढ़ाएं भाई। आसकानी भाई इल्म बढ़ाएं, करें सवाल इनसे। और चलो जी कर लो भाई, सवाल कर लो। ये मिर्जा कादियानी को दिन और रात में कितनी दफा टट्टी मुतर आती थी, करो जी इसका नहीं भाई, जो मैं फिर जवाब दूंगा। ये हमारे एजेंट हैं, वो करेंगे, इस दफा पैसे लेट मिले। कर लो भाई, कर लो, कोई और कर लो भाई, सवाल कर लो मुफ्ती साहब से कि मिर्जा जी को टट्टी मुतर कितनी दफा आता था दिहाड़ी में। जी असकानी भाई पूछे इनसे जरा, असकानी भाई पूछ लेते, आप ही पूछ लो। हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਕੀ ਕੋਈ ਕੀੜੇ ਨੇ? नहीं, वो पता है थोड़े निकले जे, आप जो है ना वो नहीं आप ही ਪੁੱਛ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਕਰਤੂਤ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਫੀਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। अच्छा असकानी भाई आपके मुफ्ती पता नहीं क्या क्या मौजूद हैं, आप करें ना सवाल। नहीं ਹੁਣ ਟੱਟੀ ਮੁੱਤਰ किधर गई जे? वो असकानी भाई, आग मास्टर साहब मेरी बात सुने। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि अगर कोई बंदा कादियान को भी दमिश्क करार देता है, फिर दमिश्क में उसका बेटा जाता है और अखबार अल फजल में ये लिखा हुआ है कि ये हदीस की सदाकत जाहिर हो रही है कि बशीरुद्दीन महमूद अहमद वहाँ गया है, इल्म तबीर की रूह से उसने 2 जर चादरें पहनी हुई हैं, बीमार हो गया है, तो हदीस की सदाकत पर दिन चढ़ाया, और नीचे ये शेर लिखा हुआ है साफ दिल को कसरत एजाज की हाजत नहीं। आपका क्या ख्याल है, ये लोगों को फुद्दू बनाने वाली बात है या नहीं? दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से भाई बात यह है कि आपके सवाल और मेरा जवाब देने का मौका नहीं है इस वक्त। आपके यहाँ एक मुफ्ती बैठे हुए हैं, बहुत बड़े आलम, तो मैं चाहता हूँ नहीं वो मुफ्ती साहब हेलो तो यार, यार सवाल कर ही देता है टाक मास्टर साहब ने यार की। हेलो यार, मैं चलो मैं रोशनी डालूं, चलो मैं रोशनी डालूं, चुप कर जा, जो ना बोलिया जे विच। जरा मुंह तो बंद करे ना,
चलो ये कह चुप रहा कर, जो मैं दसन लगा मिर्जा जी नु था, किन्नी टट्टी मैं ये मुतर कह होंदी रहा सी। था और मेरे अच्छा, नज़ीर सुने भाई, तो सही ना, आप चुप तो होते करे, हुए ये बताता हम हूँ। आपस में सवालों जवाब ठहर करेंगे, जाओ मुफ्ती साहब, ठहर जाओ, टाक मास्टर साहब इनके से बात होते करें हुए जी। अगर करें हम करें सवालों जवाब करते अच्छे नहीं लगते भी, इतने बड़े आदमी यानी मुफ्ती साहब मौजूद हैं, आप करें सवाल इसलिए कर नहीं लें मैं उनसे सवाल। असकानी भाई से कहूंगा, क्योंकि ये जो सवाल जिस किस्म का नहीं, उनके जहन में कोई सवाल होगा तो वो कर लेंगे ना, आप कर नहीं, लें, ये आपके जिन जहन में कोई किस्म है? के सवालों जवाब ये करना चाहते हैं वो मुसलमानों को ज़ीब देते हैं, तो वो करेंगे असकानी भाई, मैं नहीं करूंगा। समझ नहीं आई बात, ये जो समझ नहीं आई बात। सवाल कर रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं ना, जो तहरीर सामने आए, तो इस किस्म के सवालों जवाब आप आपस में मुसलमान करें, इस पे तबसरा करें, हम एंजॉय करेंगे जी। ओए भाई, बात ये है कि नहीं, ये किताब enjoy आपकी के लिए है। रखा हुआ है कि 2 जर्द चादरें हैं, ये मौजूद है हजरत जी का, और आपने ये एंजॉयमेंट के लिए रखी हुई है। ये एंजॉयमेंट है आप लोगों का कि ये 2 जर्द चादरें, ऊपर वाली जर्द चादर ये है कि मुझे मराक के दौरे पड़ते हैं, और नीचे वाली जर्द चादर है कि दिन और रात में 100 दफा टट्टी मुतर आता है। ये एंजॉयमेंट है आप लोगों की। हाँ जी, असकानी भाई जवाब दें। ਉਹ ਬਤਾਏ ਨਾ, ਲੈ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਮਿਰਜ਼ਾ जी ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ है। लो भाई भाई, वो जवाब तो वो ही देगा ना कि उसकी जमात ही जवाब देगी ना जो टट्टी मुतर करता रहे। हाँ जी, ये टाक मास्टर साहब, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਓ ਨਾ। नहीं किस सवाल करना है? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ नहीं, असल में ना आमिर भाई, इन्होंने मेरे साथ जो बात करनी है वो मिर्जे कादियानी की जनाकारी पे करनी है। वो कह रहे नहीं, मैंने 100 दफा टट्टी मुतर पे नहीं करनी। मैं तो मेरा मनपसंद मौजू है कि मिर्जा जी जना करते थे कि नहीं। क्यों जी टाक मास्टर, यही करनी है ना आपने? नहीं, ये असकानी भाई चुप हैं आपके जो हजरत जी के जनाकारी पे कर ले, चलो शराब नोशी पे कर ले। क्या हजरत जी कौन सी शराब पीते थे? अच्छा फिर मैं बताता हूँ आपको कि हजरत जी कौन कौन सी किस्मों की, हाँ जी, कौन कौन सी वैरायटियों की शराब पीते थे। अच्छा, मुख्तलिफ ब्रांड्स रखी हुई थी हजरत जी ने। बड़ा इल्म है यार आप। कोको वाइन, पोर्ट वाइन, स्ट्रिंग्स वाइन ते कोला वाइन है। वो दवाई है, वो दवाई करके पीते, उनको कमजोरी थी ना, कमजोरी दूर करने के लिए तो वो फीम भी खाते थे। ये होता है नुस्खा इल्म। इल्हामी। भाई आपके पास क्या है आप अपना असकानी भाई? कुछ भी नहीं, ये होता है इल्म। इल्म इन्हों कहते जी। मुफ्ती साहब, अगर आपको पता हो कि मिर्जा साहब को कौन सी शराब सबसे अच्छी लगती थी तो वो भी बता दें जरा। मेरे ख्याल में तो उनको टॉनक वाइन अच्छी थी, जो कादी यार मोहम्मद को स्पेशल भेजते थे कादियान से, जाके डाले लेके आ मेरे यहाँ। वाह वाह, क्यों टक मास्टर साहब? नहीं सही है, सही है। आपको नहीं बोले है ना, वेख्या जी, इन्होंने पता है, सब पता है इन्होंने, अंदर दी कहानियां तक पता है। ये कादियानी उंज कुन्ने बने रहंदे ने, इन्होंने सब पता है हजरत मसीह साहब केड़ियां करतूतां सन हजरत साहब दी। वैसे मेरा ख्याल है कि गुमराहों को धक्का देना चाहिए, लेकिन आपको तो मजीद गहराई में धक्का देने की जरूरत भी नहीं है, आप पहले से वहां मौजूद हैं। टाक मास्टर साहब, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ ਉਹ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੀਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਜੁਰਮ ਜ਼ਈਫੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਰਗ ਮਫਾਜਾਤ। ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਈਫੀ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੂ ਸ਼ੇਖ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਫਿਤਨੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਉਸ ਫਿਤਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ है कि उन्होंने अपना ज़ोफ दूर करना पैना सी, वो ज़ोफ दूर करना तो दवाई पीने। भाई आप अच्छी वाली अच्छी बातें कर लेते हैं, आपके जो सही मसाइल हैं उस पर आप बात कर लेते हैं, तो आप उसी नाली में से क्यों बात कर रहे हैं जिसमें मुफ्ती मुबश्शिर साहब मौजूद? ये गलत बात है, ये मतलब नाजायज बात है। इनमें से एक भी लफ्ज आप अगर कहें, और बेहतर जो है वो क्वेश्चन आंसर मौजूद है आपके पास। नहीं वो बेहतर तो अब पता नहीं इनमें से बेहतर कौन है, लेकिन क्या मिर्जा साहब ने नहीं बताया कि मुझे शेख बटालवी ने कहा था कि शादी ना करना क्यों फितना रंग है? पकड़ रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही भाई, आप अपनी अच्छा, अगर मैंने कोई बात अपने पास से कही है तो आप मुझे कहें, मैं खामोश हो जाता हूँ, माजरत कर लेता हूँ। नहीं अपनी बात नहीं की है, आपने पैरवी की है अपने मुफ्ती साहब की। मैं नहीं, मुफ्ती साहब की तो बात नहीं, मैं तो मुफ्ती साहब की बात को आगे से रोक रहा हूँ, रद्द कर रहा हूँ कि मुफ्ती साहब वो शराब नहीं थी, वो उनके ज़ोफ को दूर करने के लिए दवाई थी।
जोफ था ना उनको, ये तो है ना, नहीं था जोफ? नहीं, वो तो अब आज भी इस्तेमाल करते हैं, आपको पता नहीं, वो जोफ था, सिल की बीमारी थी। सिल की बीमारी जब हो गई थी हजरत जी को, तो आपने एक गोली बनाई थी सिल की, जिसके अंदर अफ्यून, भंग और दतूरा पड़ता था। तो ये वो बीमारी की वजह से वो असल में फीम भी और भंग भी पीते थे, तो वैसे तो नहीं। अच्छा, वैसे टाक मास्टर साहब सच्ची सच्ची बताना, वो ये भंग पीने से मिर्जा जी की वो सिल की बीमारी दूर हुई थी कि नहीं? ये मेरे से ज्यादा ना आमिर नजीर भाई को इल्म है, ये आपसे वो बात कर लेंगे ना इस किस्म की। नहीं, मुझे भी इल्म है कि जरूरी है उनको इल्म हो, मुझे भी इल्म है। ये सीरतुल महदी, ये सीरतुल महदी। मुफ्ती साहब खलो जाओ, जिवें कहंदे ने ना हसदे बच्चा रो पैन लगा है, टाक मास्टर साहब दा मूड ऑफ हो गया, हसदे एकदम गमगीन हो गया। सर जी, मेरे जाने के बाद आप आए, माशाल्लाह, ठीक है, अच्छी बात है। इसका मतलब टाक मास्टर साहब मैं चला जाऊं, आप आ जाओ। वैसे टाक मास्टर साहब आपने हवाला नहीं पूछा, बड़ी बात। मतलब आपको सब पता है कि हजरत जी जो है ना भंग भी पीते थे, फीम भी खाते थे। क्या बात कर रहे हैं असकानी भाई, कौन चला जाए? मैंने कहा मैं चला गया था तो आप ऊपर आए, मैं आ गया हूँ। ऐसा ना हो कि नीचे चले जाओ, बैठे रहो और गुफ्तगू कीजिए। नहीं, नीचे आना जाना तो लगा ही रहेगा ना, आप क्यों खामखा हो? मतलब आपको मतलब कोई ऐसी बात तबीयत में नहीं लगी तो बताइए वो कौन सी मैं है। नीचे उतर जाऊंगा, कोई मसला नहीं। नहीं, आप रहें ना, मैंने यही तो कहा कि आप ऊपर हैं, ठीक है, रहें जी। वो मेरे से नाराज हो रहे हैं, वो कहते हैं कि आपने ये क्यों कहा है कि मिर्जा साहब को जोफ था, उसको दूर करने के लिए उन्होंने ताकत की दवाई पी है। मैं ये नहीं कह रहा टॉनिक कि लाइन। आप जो है वो उसको ताकत की दवाई साबित कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि आप भी इनके साथ, जो देखे ना, आपके मुफ्ती साहब मौजूद हैं, जो कुछ अल्फाज वो कह रहे हैं वो उसकी पैरवी करें आप भी। या नहीं करने चाहते तो फिर माइक म्यूट करें। नहीं, उनके अपने अल्फाज हैं, मेरे अपने अल्फाज हैं। मैंने तो कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोला जो आपकी किताब में मौजूद नहीं है। कमजोरी का भी उनको इकरार है, तस्लीम है उनको कि मुझे कमजोरी थी। और आपके लिए तो मैं ये कह रहा था कि आपके लिए डिस्कस करने के लिए इससे बेहतर, अच्छे और ज़्यादा काबिल तवज्जो जिसे कहते हैं वो मौजू मौजूद हैं, तो आपने इन मौजू को लेकर करना क्या है? मैं आपको ये कह रहा था, ये मुफ्ती साहब का काम है, उनको करने दें। 50 फूल मारे हैं लोगों ने उनको। चले, मैं चुप कर जाता हूँ। जिस मौजू पर आप करना चाहते हैं। क्या मतलब है ये रजूलियत का मतलब जरा बता दें। मैं रजूलियत का मतलब कल तल्लज़ और मलक ने रजू बताया है। रजूलियत का मतलब रजू होता है। ऐसा कोई माने रजूलियत का? काले कालू ने भी रजूलियत की है और काजी यार ने भी रजूलियत की है, इसकी क्या वजह है? ये मुफ्ती साहब से बात करें, ये बड़ी अच्छी रजूलियत आपको बताएंगे। नहीं, मुफ्ती साहब ने तो दिन का आपकी फिर खुशू और खजू खोल ली थी ना, फिर वो आप कैसे लोगों को पीछे टॉपिक है, बड़े फेवरेट उनके है ना, इस किस्म के फेवरेट किस्म। अच्छा, ऐसा है, अब मेरे पर तवज्जो ना दें जी, अपना काम जारी रखें जी, मैं बैठ के सुन रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, वो जवाद साहब कहाँ गए? उनको बुलाएं भाई, वो कोई है मॉडरेटर तो वो देखें, अगर नीचे है ना तो उनको कॉल पे लें। पहले उनको मौका नहीं मिला, मैं बिजी हो गया था, तो अब उनको मौका दें बात करने का। वो क्या कहना चाहते हैं, जो भी वो कहना चाहते हैं, ऊपर आए, तशरीफ लाएं। पहले आप शाख से उल्लू हटाएं, फिर वो आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। नहीं, उल्लू का क्या है, उल्लू तो हर तरफ है ना भाई। वो एक शाख पे नहीं बैठे, हर शाख पे हर तरफ उल्लू ही उल्लू बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया पे अल्लाह माफ करे। अच्छा, रजूलियत से वैसे मुराद क्या है? अच्छा सुन ले यार, छोड़ दें यार, फिर साहब इस बात को छोड़ दें यार। सुबह सुबह यार किड़ियां गल्लां लैके बह गए, सियाने बयाने सारे। नहीं, गलत बात है नहीं ना भाई। आमिर भाई, ये निशान नंबर 13 है जो आप अभी बता रहे थे ना, ये जो ये 3 दिसंबर 2008 का ये सफ़ा नंबर है। मैनू तो मैं यही लभन दिया वा, 40 नंबर पेज पे है भाई। ये बड़ी लंबी अखबार है यार, थोड़ी लंबी है लेकिन नहीं अखबार भाई, ही है ये ना, तो कोई किताब तो 40 पे नहीं तो है। मैं पहुंचा हूँ ना अभी, तो ये काफी ज्यादा पड़ी हुई है। मैंने आपको बताया निशान जहाँ पर लिखे हुए ना, 13वां 13वां निशान ये है। निशान।
अब वो नहीं मुझे पता है वो कौन से सफ़े पे 40 लिखे हुए हैं, 40 लेकिन 40-50 सफ़े की अखबार है। वो निशान देखे नीचे जहाँ लिखे हुए हैं, वहाँ पर 13वां जी निशान मोटा मोटा लिखा हुआ है, 12वां निशान, 11वां जी निशान, जी 13वां निशान। जी ये है क्या लिखा हुआ है, पेश फर्क गोई उसमें? के अल्लाह ताला मसीह इब्ने मरियम को मबूस करेगा जो दमिश्क के मशरक में सफ़ेद मीनार के पास उतरेंगे, जर्द रंग का लिबास ज़ेब तन किए होंगे। आगे लिखा हुआ है मुस्लिम किताबुल फितन। कहते हैं कि हज़रत मसीह मौद ने रजब 1311 हिजरी मुताबिक जनवरी 1894 1894 में इस हदीस की इल्हाम इलाही से ये तशरीफ़ फरमाई कि अरबी लुगत में नज़ील मुसाफिर को कहते हैं। इस हदीस के मानी ये है कि मसीह मऊद या उसके खुलफा में से कोई खलीफा दमिश्क का सफ़र करेगा, यानी या मसीह मऊद सफ़र करेगा या खलीफा कोई दमिश्क का सफ़र करेगा। इस इब्तदाई ज़माना में जबकि आपकी शख्सियत पर्दा गुमनामी में मस्तूर और कादियान की छोटी सी बस्ती बिल्कुल गैर मारूफ और जमात की तादाद भी नहायत दर्जा कलील थी। मिर्ज़ा साहब कहते हैं मेरे 1 लाख ज़्यादा लेने। आपकी बयान फरमूदा ये तोजी बिल्कुल नामुमकिन अलवकू दिखाई देती थी, मगर इसके 30 साल बाद ऐसे गैबी सामान पैदा हुए कि सैयदना हज़रत मुस्लिम मऊद अगस्त 1924 के सफ़र यूरोप के दौरान दमिश्क के मीनारा बैज़ा के ठीक मशरक में वाक़या होटल में क़याम फरमा हुए। होटल में हुजूर की ज़ियारत करने वालों का तांता बंदा रहा। अक्सर लोग नहायत एहतराम का इजहार करते और आपको इब्नुल महदी कहकर सलाम कहते थे। अब ये देखें ज़रा कितनी गप घड़ी हुई है। दमिश्क में वो कितने हैं लोग जिन्होंने आके इसकी ज़ियारत की है कि ये इब्नुल महदी आ गया है। वो कितने हैं लोग जिन्होंने इसके हाथ पर बैत की है। दमिश्क में मिर्ज़ाइयों की कितनी तादाद है, लेकिन क्योंकि ये अल-फज़ल अखबार अपने इन दौलत शाह के चूहों को देना है जिनकी मौत, बस ऐसे ही इनको लिख के दे दो कि भाई लो भाई ये वहाँ गया था तो वहाँ पर लोग आते थे, तांता बंदा रहा, लोग इब्नुल महदी कहकर मुखातब करते थे। और एक पीछे झूठ बोला है कि इल्हाम इलाही से ये तशरीह की। ये सारे झूठ है, एक एक लाइन में 2-2 झूठ बोले होते हैं, ऐसे कज़्ज़ाब है। तांता बंदा रहा, इब्नुल महदी लोग कह के, अगर वहाँ 1924 में लोग इब्नुल महदी कह के पुकारा करते थे, अब तो 2024 है, वहाँ पर लाखों मिर्ज़ाई होने चाहिए। दिखाओ तो मिश्क में कितने मिर्ज़ाई हैं आपके। तांता बंदा रहा, जिन्हें मर्जी झूठ मारी हो, केड़ा किसे जाके वेखना तांता बंदे है कि लोग चित्तर मार दे पे ने। चलो पढ़ो जी अगे। लोग आपको अज़ाबाद 1955 में आपको अपने इख्तियार से नहीं बल्कि मुल्क भर के मशहूर डॉक्टरों के इसरार पर बगर्ज़ इलाज दूसरी बार यूरोप जाना पड़ा। इस सफ़र में 30 अप्रैल को आप दमिश्क पर बाज़रिया हवाई जहाज़ उतरे। दमिश्क पर इल्म ताबीर की इस्तिलाह के मुताबिक इस वक्त आप 2 जर्द चादरों में मलबूस यानी बीमार थे। अलगर्ज हदीस नबवी की सदाकत पर गोया दिन चढ़ गया और नज़ूल दमिश्क का निशान मानवी और ज़ाहरी दोनों एतबार से पूरा हो गया। नीचे शेर लिखा हुआ है, साफ दिल को कसरत एजाज की हाजत नहीं, एक निशान काफ़ी है अगर दिल में है खौफ करदिगार। अब किसी मिर्ज़ाई को हला के पूछे हैं तो ये लाशें ही बोलते तो नहीं हैं, लेकिन हलाज ला के पूछें किसी मिर्ज़ाई से, नज़ूल दमिश्क की जो हदीस है हमारी सिहा सित्ता में, उसकी सदाकत पर दिन चढ़ आया है बशीरुद्दीन महमूद अहमद के वहाँ उतरने से। साबित हो गई है, हदीस सच्ची साबित हो गई है कि अभी आना है कोई और मसीले मसीह, क्योंकि मिर्ज़ा साहब तो लिखा हुआ है ज़ाला हाम में कि 10,000 से भी ज्यादा मसीले मसीह आ सकते हैं। वो आना है किसी और मसीले मसीह ने, या अब ये दिन चढ़ गया है, अब और
जब हदीस साबित हो गई, सच्ची साबित हो गई, तो एक ही दफा साबित होनी है, एक ही दफा आना है, कोई 10,000 दफा तो नहीं आना वहां पर। तो झूठ बोले हुए हैं किताबों में, लोगों को गुमराह किया हुआ है, लोगों से चंदा बटोरने के लिए लफाजी की हुई है कि लोग वहाँ पर तांता बंदा रहा, ज़ियारत करने के लिए आते थे, इब्नुल महदी कह के मुखातब करते थे, कदम बोसी करते थे, हाथ चूमते, जो मर्जी झूठ बोली जाओ। इन्होंने कौन सा जाके देखना है? किसी ने देखा है दमिश्क में? कौन इसको इब्नुल महदी कहता था? कौन इसका तांता बंदा रहा ज़ियारत का? किसने यहाँ पर खबर मुश्तहर की थी कि ये आ रहा है वहाँ पर दमिश्क? झूठ बोला हुआ सारा। 1924 में कौन इनको जानता था? अभी तक नहीं जानते। 2024 तक एक मिर्जाई नहीं दिखाई देगा आपको पूरे दमिश्क में। लेकिन इनको धोखा देने के लिए 1924 की गप गढ़ के लिखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। कितने सबूत? वालेकुम अस्सलाम। मतलब कितने सबूत इनकी आंखों के आगे और रखे जाएं, इनके किज़बात के, इनके हेरा फेरियों के। अगर ये चीज़ें देखकर आपने मिर्ज़ाइयत से ताइब नहीं होना, तो ईसा अलैहिस्सलाम का स्टेटस जानना, ईसा अलैहिस्सलाम के हयात वफात का मसला हल करना, ये आप अड़ा रख रहे हैं। ये तो वो बंदा करता है जिसने इस्लाम कबूल नहीं करना। जब इतना बड़ा किज़ब, इतना बड़ा मक्कर, इतना बड़ा फरेब, धोखा हमारी आंखों के सामने आ जाए, बाकी सारी बातें छोड़ के भाई ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है या फौत हो गए हैं, बंदा कहता है मैं तुम पे लानत भेजता हूँ जिसने ये झूठ बोला हुआ है, मेरे साथ ये धोखा किया हुआ है, मेरे माँ बाप से चंदा बटोरते रहे हो, मुझसे चंदा बटोरते रहे हो, तुम पे तो मैं लानत भेजता हूँ। बाकी रही बात ईसा अलैहिस्सलाम की, वो मैं खुद जाकर कुरान खोल के देख लूंगा, हदीसें खोल के देख लूंगा। जिंदा दिखाई दिए जिंदा मान लूंगा, फौत शुदा दिखाई दिए फौत। तुम झूठे हो, कम अज कम तुम्हारे झूठे होने में कोई शक नहीं रह गया। लेकिन जिन्होंने इस्लाम नहीं कबूल करना, जो अपने नफ्स के साथ धोखा दे रहे होते हैं और अपने साथ ही वो गलत बयानी कर रहे होते, वो एक आया एक नौजवान मिर्जाई, मुझे कहता है मुझे ईसा अलैहिस्सलाम का मसला हल कर दो, मैं मिर्जाई छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे समझा दो ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है कि फौत हो गए। ये दर्जनों दफा हमें तजर्बे हुए कि जिस बंदे ने मिर्जाइयत को ना छोड़ना हो, जिसने कसम खाई, वो कहता है मुझे ईसा अलैहिस्सलाम के हयात वफात पे मेरे से बहस कर। वरना ये झूठ देख के बंदा कहता है भाई ये झूठ है, इस पे तो मैं लानत भेजता हूँ, लिखने वाले पर भी और इस तहरीर पर भी। मैं तो तौबा करता हूँ, बाकी देख लेंगे अकायद जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, महदी के बारे में, कुर्ब क़यामत के दीगर जो आइमा मुहद्दिसीन ने अबवाब बांधे हैं। बाबुल फितन हद जाके किताब में खोल के देखें, हदीसों की किताब में बाबुल फितन के नाम से अबवाब बांधे हुए हैं। वहाँ पर बहुत सारे वाक़यात और बहुत सारी निशानियाँ लिखी हुई हैं, कोई एक बात तो है नहीं। तो वो बंदा जाके खुद तहकीक कर लेता है, पढ़ लेता है, सारा दीन आपकी फिंगर टिप पर पड़ा हुआ है। हेरा फेरी अपने साथ ना करें, अपने साथ झूठ ना बोलें। ये देखें आपकी आंखों के सामने झूठ रखा है, इसको देखें और इनको झूठा करार दें तो ये झूठे हैं, ये कज़ाब हैं, फ्रॉडी हैं, धोखेबाज हैं। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ें, अगर नहीं तो भाई हमें शुगल ना लगाओ। भाई ईसा अलैहिस्सलाम ना दसो भाई ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे उम्मती होंगे कि नबी होंगे, एक पहलू से फिर उम्मती होंगे, फिर एक पहलू से नबी होंगे। ये खेल है, ये हेरा फेरी है, ये तमाशा है। शुगर लगाना चाहते हैं आप, इससे बाद आ जाए जी, कर लें जिसकी बात करने में थोड़ा। जामिद भाई तशहीजुल अज़हार कहाँ से मिलेगी? मुझे मिल नहीं रही। कौन सा ये तो बच्चे नहीं, साल बताओ ना। ये कोई अखबार है? अहमद अली अली पता नहीं। अहमद मौजूद है? जी जी आवाज आ रही है, मैं आया हूँ कम नहीं जी मुफ्ती साहब। व्हाट्सएप पे एक छोटा सा मैसेज कर रहे थे, मैसेज करिए। एक सेकंड।
احمد بھائی یہ کوئی اخبار ہے کیا کوئی کتاب ہے یہ تشہیر الاذہان؟ شیز الدہان ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، میں بزی ہونے لگا ذرا میں ٹھیک ہے، کہاں سے ملے گا کوئی پتہ ہے؟ مجھے مل نہیں رہا۔ ماہنامہ اچھا ٹاک ماسٹر صاحب چپ ہی ہو گئے ہیں آپ، کوئی بات کر لیں، کوئی تبلیغ ہی کر لیں، کوئی بیٹھے ہیں آپ ویلے؟ کوئی حضرت جی کہ آپ بھی کوئی نشانات ہمیں سنائیں کوئی۔ ہیلو ٹاک ماسٹر صاحب چپ ہی ہو گئے ہو۔ دو حلوں کے اوپر ہی تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں کوئی۔ نہ ہی سمجھیے بھائی کی کریے۔ علی میسج کریں یار، ویٹ کر رہا میں۔ گئے دنوں کا عامر صاحب آپ کرو ذرا میسج۔ عامر صاحب موجود ہیں؟ منہ سے آیا کدھر گیا وہ عجیب مانو سب۔ ہاں جی مفتی صاحب کرتا ہوں میسج کروں۔ او نہیں تساں نہیں سی نہ کرنا۔ علی بھی کرن لگا میں میسج تو اپنا نمبر تو سینڈ کیا نمبر۔ جی مفتی صاحب میں ادھر گیا، ہم دوجے موبائل تو میسج کر کے آیا بھی کوئی نہیں نمبر تھوڑے کو۔ آسکانی بھائی ایک سوال ذہن میں آیا ہے کہ اگر فرض کیا کہ میں قادیانیت کو چھوڑ کے مسلمان ہو جاؤں تو کیا آپ کی طرح مجھے بھی مفتی مبشر صاحب پڑے گا؟ جی یہ میرا سوال ہے آپ سے۔ جیسے وہ دو دینا پراپر اچھا سا ناشتہ لگا گرما گرم آئے۔ یہ جی ان پرانے وقتوں کی بات ہے جب حضرت مسیح موعود صاحب ٹونک وائن کی شاپ کے اوپر اسپیشل وہ ڈالے منگواتے تھے، خطوط امام بنام غلام، ہاں جی حکیم محمد حسین، ہاں جی کو خط لکھتے تھے، قاضی یار محمد لے کے آتا تھا۔ ٹاک ماسٹر صاحب کہیں پہ غلطی کروں تو بتائیے گا۔ حکیم محمد حسین ہی تھا نا جو بیچتا تھا، اور لے کے آنے والا وہ قاضی یار محمد تھا کہ کوئی اور تھا؟ ٹونک وائن۔ ہیلو ٹاک ماسٹر چپ ہی ہو گئے ہو، سب ہی سن گئے، چلو بیٹھے رہو پھر ہوں۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। उस्ताद साहब की हाल ने, ठीक ठाक हो, खरीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पछाण ते तुसी गए ही होवोगे, सजाफी नां दी आईडी है मेरी। जो जी माशाल्लाह ठीक हो गया, सेहत भी है ठीक है माशाल्लाह, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मेहनत फरमा रहे हो, अल्लाह पाक तुहाडी फतूहात विच बरकतां पावे जी। आमीन आमीन आमीन। मैं इंशाल्लाह थोड़े दिनों च हाजिर होना जनाब दी खिदमत च। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह सलामतियां अता फरमाए। इंशाल्लाह बाकी व्हाट्सएप ते इंशाल्लाह होएगी गपशप। इंशाल्लाह ते केड़ा मौजू अजकल चल रहा है उस्ताद जी? जी टानक वाइन जी, खतूत इमाम बनाम गुलाम किताब का नाम है, जो कि काजी वो बल्कि ये खतूत सारे इकट्ठे किए हैं हकीम मोहम्मद हुसैन ने, और ये हकीम मोहम्मद हुसैन था कादियानी, और इसको मिर्जा कादियानी वक्तन फवक्तन खत लिखा करता था। तो ये अपनी किताब खतूत इमाम बनाम गुलाम के सफ़ा 5 के ऊपर एक खत शामिल करता है मिर्जा कादियानी का। लिखता है कि अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त यहाँ काजी यार मोहम्मद भेजा जाता है, आप अशियाए खुर्दनी खुद खरीद दें और एक बोतल टानक वाइन की प्लूम्बर की दुकान से खरीदें, मगर टानक वाइन चाहिए, इसका लिहाज रहे, बाकी खरीयत है। वस्सलाम मिर्जा गुलाम कादियानी। ते कोई आंदा नहीं पिया कोई आके ते दिफा करे अपने मिर्जे दा? नहीं, ਉਹ ਅਜੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਤੇ ਐਸੀ ਹੈ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਭਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਲੱਭਣ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਪਲੂਮਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਲੱਭਣ ਟੁਰ ਗਏ। मैं भी गौर कर रहा सी कि फोटो जिन्ने भी जनरेट की है ना कमाल ही कर छड़िया। हद मुका छड़ी है, यकीन मनो पूरा पूरा नक्शा बनाया है जेड़ा असल है। भाई ऐसे है वो कोई नहीं, आवाज आ रही अमर भाई? अमर भाई पीछे गए होने नहीं। अमर भाई कुछ बंदे ये ना मैं ब्लॉक कर लांगा ना, साड़ी नाराजगी ना कुछ, क्यों कुछ जाके बराड़ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਏ ਮਸਊਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 101 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮਿਊਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਬ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਊਟ ਕਰਦਾ ਫਿਰਾਂ ਜਲਾਂਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 2-4 ਹੋਰ ਬੰਦੇ। ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਪੂ ਵੀ ਤੇ ਮਸਊਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਛੜੇ ਹੈ ਤੇ ਮਸਊਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਾਰੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਤੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਹੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ जी, कोको वाइन, सॉरी कोको किथों आ गई विच, टॉनक वाइन, टॉनक वाइन पे बात हो रही। अच्छा, ये वाइन जो है ना, ये शराब होती है। मिर्जा कादियानी रूहानी खज़ैन जिल्द 3 सफ़ा 367 के ऊपर वाज़े तौर पे शराबों के अंदर इस वाइन को शामिल करता है। कहता है ब्रांडी, शीरी, विस्की, रम, पोर्ट, वाइन वगैरह शराबों के नाम नोके जुबान हो रहे हैं। तो ये जो कादियानी कहते हैं ना, दुआई 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 की रट लगाते हैं, दुआई शुआई कोई नहीं सी, शराब ही सी। हाँ। और ये टॉनक वाइन आज भी, आज के दौर के अंदर भी मिलती है, समझ आई कि नहीं? आज भी मिलती है, और वो सारे शराबियों ही पीते हैं, और शराब समझ के ही पीते हैं। कोई भी आज तक कोई दिखा नहीं सकते कि कोई उसको दुआई समझ के पीता हो। ये मैग्नम नाम की टॉनिक वाइन मिलती है, 200 ml की। जेमी नाम की टॉनिक वाइन मिलती है,
मेरे पास अभी इसकी बोतलें भी, तस्वीरें भी मौजूद हैं। ये कितनी है ml, यानी बड़ी बोतल है ये, गालबन 1 लीटर वाली है। हाँ, जेमी। फिर बॉक फास्ट टॉनिक वाइन, ये भी मिलती है। आज के दौर की ये सारी हैं। एक है टॉनिक वाइन जनाब बेलफास्ट, ये बेलफास्ट की टॉनिक वाइन भी आज मिल रही है। ये मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ नामों से टॉनिक वाइन बना रही हैं, समझ आई कि नहीं? कौन है जो इस टॉनिक वाइन को दवाई के तौर पे इस्तेमाल करता है जी? आज भी ये शराब की बोतल है और शराब के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, दवाई थी। और उधर बात करें अगर, क्या इसका नाम है, कोको वाइन की, तो मिर्जा कादियानी मकतूब नंबर 113 के अंदर, मकतूबात अहमदिया जिल्द चहारम सफा 248 के ऊपर वो कहता है, वो डॉक्टर को अपनी तबीयत के बारे में बताता है। वो कहता है जब मैंने कोको वाइन पी तो सर्दियों के अयाम थे, लोग कंबल लेके लेटे हुए थे, लेकिन मुझे उसने आग लगा दी कोको वाइन ने, और सारे कपड़े उतार फेंकने को मेरा दिल चाहा, दिल की घबराहट बहुत हो रही थी। तो फिर वो कहता है मैंने वो अरक रखा हुआ था कोई, तो वो पहले पिया, तो फिर जाके मुझे अरके कफूर से कुछ फायदा हुआ। समझ आई कि नहीं? नशा उतारने के लिए ये अरके कफूर, जैसे वो लेमन वगैरह नहीं पीते या कोई नमक वगैरह खाता है, या इस तरह शराबी लोग नशा उतारने के लिए ये करते हैं। तो कहता वो मैंने पिया है अरके कफूर, तो जाके मेरी तबीयत बहाल हो गई है। वो शराबी था एक नंबर दा, जिन्हों तुसा मसीह बनाया है। सीधी तरह क्या करो भाई, शराबी सी। उस्ताद जी टॉनिक वाइन ते नाटक पाइन। वो तो खुद मिर्जा कादियानी तस्लीम भी करता है, माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो कहता है कि वही लोग क्या कहेंगे, मैं फीम खाऊंगा तो लोग मुझे कहेंगे कि पहला जो मसीह था वो शराबी था, माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो दूसरा मसीह जो है फीमी है? हालांकि वो फीम खाता रहे, भंग पीता रहे। अभी मैंने हवाला दिए। कादियानियों को जब मिर्जे कादियानी की करतूतें बताएं, साथ ही बस बोलतियां बंद हो जाती हैं इनकी। कोको वाइन अच्छा यार साहिबान बैठे आप, तो मुझे अभी जाना है, तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। रब रखा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमा, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है, और ये फितने सर उठा रहे हैं, और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमा गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदियान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नो मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी
तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमानों के उठाए गए एतराज़ात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है वो, और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है रजब, शबान और रमज़ान, तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम अज कम जो है ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फर्ज है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराजी हमने खरीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कैंपेन हम चलाएंगे। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।